Good afternoon, my dear students. We are back with a new video. We'll be discussing a few last questions of applications of trigonometry in this video. So I'm discussing question number 13th of this exercise, and before that I hope कि आप लोगों को अभी तक का कराया हुआ concept is definitely clear. Angle of elevations, angle of depressions, basics of all those, I hope कि आप लोगों को clear होगा, right? So now I am proceeding with question number 13. See my next question, question number 13th of the same exercise. As observed from the top of 75 meters high lighthouse from the sea level. आप लोगों ने सी में देखे होंगे लाइट हाउसेज रहते हैं, राइट? वहां से ही एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 75 meters हाई लाइट हाउस, 75 meters हाई है लाइट हाउस. The angles of depression of two ships are 30 and 45. There are two ships. एक शिप यहाँ होगी, दूसरी शिप यहाँ होगी, तो उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन अगेन हॉरिजॉन्टल से मेजर होंगे. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45. So this is 30 degrees and this angle is 45 degrees, right? If one ship is exactly behind the other, एक शिप exactly दूसरे के पीछे है, on the same side of lighthouse, you need to find the distance between two ships. आपको इन दोनों ships के बीच का distance find करना है. So simple question. देखो एक बार, if this is 45 degree, ये भी 45 degree होगा, right? If this is 30 degree, ये भी 30 degrees होगा या नहीं होगा? And this is 75 meters, right? ये 75 meters है. अब triangles की नेमिंग करते हैं, A B C D. Now in triangle ABC, इसमें देखती हूँ, इसे एक वेरिएबल और एज्यूम कर लेते हैं, विल कंसीडर इट y. अब हमें फाइंड सिर्फ x करना है, नीड टू फाइंड x. मगर एक जो y वेरिएबल एज्यूम कर रही हूँ उसे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? बिकॉज देयर आर टू ट्राइंगल्स, तो वी नीड दिस वेरिएबल. इन ट्राइंगल ABC, tan 45 is 75 by y. Tan 45 is 1. This is 75 by y. Y will be 75 meters. Y क्या आ गया? 75 meters. Now I'll take this complete. ये छोटा ट्राइंगल नहीं लेंगे कि इसमें सिर्फ x है तो ये ले लेते हैं. No, we have to take a right angle triangle. So in triangle ABD, now tan 30 is perpendicular by base. Perpendicular कितना है? 75 meters. And what is my base? X plus y. tan 30 क्या रहता है? 1 by root 3 equals to 75 upon x plus y. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus y equals to 75 root 3. अब यहाँ से y की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो x plus y equals to 75 root 3, right? अब y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं, तो this will be, this is equation 1, तो x plus 75 equals to 75 root 3 from 1. तो ये क्या हो जाएगा? This implies 75, sorry, x equals to 75 root 3 minus 75. 75 कॉमन ले लेंगे तो this will be 75 root 3 minus 1 meters. I hope ये क्लियर है आप लोगों को. सिर्फ और सिर्फ इसमें समझने वाला वापस फिगर ही था, right? So shall we attempt the next question? Question number 14, 15, 16. These are very important questions from examination point of views. So attempt these questions very carefully. Question number 14, 15 and 16. Now my question number 14 is, इस टाइप का एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, बट स्टिल आई एम अगेन डिस्कसिंग दिस. A 1.2 meter tall girl spots a balloon
अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये एक टॉल गर्ल है 1.2 मीटर्स टॉल, उसे एक बलून दिखा यहाँ स्काई में. This balloon is moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. अब ये जो बलून है मूव कर रहा है और ये कितनी हाइट पे मूव कर रहा है 88.2, यानी कि ये 88.2 मीटर्स पर है ग्राउंड से. एंड वो गर्ल अगर ऑब्जर्व कर रही है तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, राइट. नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून from the eyes of girl at some instant is 60 degree. अभी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री. एंड आफ्टर सम टाइम, अब बलून ऐसे मूव कर रहा है, राइट. अब ये स्ट्रिंग नहीं लगी है, ये तो हम लोगों ने जस्ट एक डायमेंशंस ड्रॉ किए, राइट. अभी बलून यहाँ है तो आफ्टर सम टाइम बलून यहाँ होगा या नहीं होगा. तो आफ्टर सम टाइम the angle of elevation reduces to 30 degree. कुछ देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया उसका 30 डिग्री हो गया. क्लियर हुआ. तो अभी बलून यहाँ आ जाएगा. तो आई होप फिगर आप लोगों को समझ आया है ना. What you have to find the distance traveled by balloon, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि हम लोगों को ये डिस्टेंस x फाइंड करना है, राइट. We have to find distance x. So to find is x, और ये हमें डिस्टेंस कंप्लीट 88.2 दे रखा है. This is 88.2 meters, राइट. अभी देखो यहाँ पर क्या है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, राइट. अभी इफ दिस इज 1.2 तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 1.2, राइट. और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इफ दिस इज 88.2 माइनस 1.2 इट विल बी 87 मीटर्स. इज दिस क्लियर टू यू. अभी यहां पर सी दिस ट्राइंगल ए बी सी. सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगी, ट्राइंगल ए बी सी. इन दिस ट्राइंगल ए बी सी tan 60 is perpendicular is 87 and my base is, इसको y assume कर लेती हूँ इतने को, राइट. tan 60 कितना होता है √3y is 87. तो y कितना हो जाएगा यहाँ पर 87/√3. अभी क्योंकि कैलकुलेशन में यूज होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू रैशनलाइज इट, ठीक है. अभी फिर से मैं ट्राइंगल लूंगी, ट्राइंगल बी, दिस विल बी ई, BED. नाउ ट्राइंगल BED, इसमें देखो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 विल बी 87. अब इस ट्राइंगल का बेस कितना है, देखो BED का बेस तो ये कंप्लीट है ना, तो बेस विल बी x प्लस वाई. अच्छा एक गलती कर दी, 60 लिखते यहाँ पर. tan 30 विल बी 87/x प्लस वाई. तो tan 30 is 1/√3. This is x plus y. Sorry, 87/x plus y. X plus y equals to 87√3. x की वैल्यू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. This will be 87/√3 equals to 87√3. x यहाँ से आएगा 87√3 माइनस 87/√3. तो बेटर मैं इसे सॉल्व करने से पहले आई टेक 87 कॉमन, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3. सो दिस विल बी 87, दिस विल बी √3, 3 माइनस 1, राइट. तो ये क्या हो जाएगा 87 इंटू 2/√3. अगेन हम इसे रैशनलाइज करते हैं and after rationalizing it we'll just solve it. This will be 87 into 2√3/3. x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये अपना आएगा x.
आई होप यू कैन सॉल्व दिस। और ये क्लियर भी हुआ है। जस्ट वापस यू हैव टू चेक कि फिगर में ये 1.2 आपसे मिस ना हो और आप इसे 88.2 लेकर के ना चले। ये स्टेप है जहां पर फ्रीक्वेंट मिस्टेक होती है। सो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। This is the second last question, question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. This is the tower and this is highway. अगर आप हाईवे पे चलते जा रहे हैं तो वो हाईवे कहां पर जाकर के खत्म हो जाएगा? फुट ऑफ टावर। A man standing on the top of tower. A man is standing here. A man standing on the top of tower observes a car at an angle of depression 30. अब उसने एक कार को देखा जो कि कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पर था? 30 डिग्री। क्लियर हुआ? Now this car is approaching the foot of tower with a uniform speed. अब ये जो कार है वो इधर को मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। 6 seconds later, 6 सेकेंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद 60 डिग्री। अब ये वाला डिस्टेंस उसे कवर करने में 6 सेकेंड्स लगे। यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 6 सेकेंड्स लगे एंड ही इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी यू बोल दें इसे यू किलोमीटर्स पर आवर, राइट। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट फ्रॉम दिस पॉइंट टू हियर। हमें वो टाइम बताना है कि इस कार को यहां, अच्छा देखो वो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। यहां से यहां तक उसे पहुंचने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स। हमें क्या बताना है? यहां से यहां पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। एक बार वापस से क्वेश्चन रीड करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। ये टावर है अपना, दिस इज द हाईवे, राइट। A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression was 60 degree. Now we have to find the time taken by car to reach here at this point. अभी देखो यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है, बट जो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे वो डिस्टेंस पर लगाएंगे, 6 सेकेंड्स टाइम पर नहीं लगाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड यू ले ली, यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है उसे। अच्छा ये मैं मीटर्स पर सेकेंड लूंगी क्योंकि उसमें गिवन है सेकेंड्स में, मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये टी टाइम में सपोज वो यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो मुझे ये टी फाइंड करना है। टू फाइंड दिस टी, कितना टाइम लगा? दिस इज ट्राइंगल ए बी सी डी, ठीक। अब हमें पता है कि डिस्टेंस क्या रहता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब ये जो सी डी डिस्टेंस है, मैं पूरा लिख देती हूँ, स्पीड इनटू टाइम। इफ दिस सी डी डिस्टेंस, ये जो सी डी डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है यहाँ पर? स्पीड इज यू, यूनिफॉर्म स्पीड यू से मूव कर रहा है, टाइम कितना लगा? 6, तो उसे लग गया 6u मीटर्स। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास? 6u। कोई डाउट इसमें? नहीं। अभी BC, अभी मैं फाइंड कर रही हूँ BC। BC इज अगेन डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर भी u है और टाइम कितना लग रहा है वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसे t ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आ गया ut मीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा? ut मीटर्स। तो यानी कि ये डिस्टेंस हो गया ut, ये डिस्टेंस हो गया 6u। इसे मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ये h मीटर्स का टावर है, राइट। अब वापस ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल ABC, कुछ नहीं है इसकी कैलकुलेशन में, ट्राइंगल ABC। इनफैक्ट सबसे इजी कैलकुलेशन पाओगे आप अभी तक इसकी। ट्राइंगल ABC में, अच्छा दिस इज 60,
तो दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज 30 डिग्री, राइट। ट्राइंगल एबीसी में tan 60 इज h बाय ut, यहां से tan 60 की वैल्यू इज √3, दिस इज h अपॉन ut, h क्या हो जाएगा √3 ut। क्लियर हुआ इतना? अभी मैं कंप्लीट ट्राइंगल ले लूंगी, ट्राइंगल एबीडी। नाउ ट्राइंगल एबीडी, इस ट्राइंगल एबीडी में tan 30 विल बी दिस h अपॉन, ये कंप्लीट डिस्टेंस की बात होगी। अब कंप्लीट डिस्टेंस इज ut प्लस 6u, ut प्लस 6u, राइट। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर tan 30 इज 1/√3, h की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ √3 ut, दिस इज इक्वेशन 1, तो यहां लिख देती हूँ फ्रॉम 1 अपॉन ut प्लस 6u, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दिस विल बी ut प्लस 6u इक्वल्स टू √3 इंटू √3 विल बी 3ut, यहां से मैं u कॉमन ले लेती हूँ, दिस विल बी t प्लस 6 3ut, u से u कैंसिल, t प्लस 6 इक्वल्स टू 3t, 6 इक्वल्स टू 3t माइनस t, तो यहां से 2t 6 आ जाएगा, 2t इक्वल्स टू 6, t विल बी 3 seconds, तो दिस विल बी माई आंसर। 3 seconds लगे उसे यहां से यहां तक पहुंचने में। मेक श्योर एक चीज आपको ध्यान रहे कि कभी भी टाइम पर हम लोग कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना ही है, तभी हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये 6 सेकेंड्स गिवन था, तो मैंने स्पीड को u एज्यूम कर लिया, u मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस आई फाउंड आउट कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ct भी मैंने यहां से निकाल लिया और मैंने bc भी निकाल लिया और उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगाया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही छोटा क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सो आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 points। एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 2 points है, these are the 2 points, उन 2 points से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters, this is 4 meters and this distance is 9 meters, right? At a distance from the base and in the same line with it are complementary, यानी कि जो एंगल्स हैं वो दोनों के दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। If this angle is theta, this angle will be 90 minus theta। ध्यान से सुने, the angle of elevation, elevation angles है, the angle of elevation to the of the top of tower from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the base of tower and in the same straight line are complementary। We need to prove that height of tower is 6। प्रूफ क्या करना है, इवेल्युएट ही करते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट्री जिनका एंगल सम ऑफ एंगल इज 90, तो टू प्रूव h इक्वल्स टू 6 meters। चलो ट्राइंगल लेंगे एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज h अपॉन 4, राइट। tan 90 माइनस थीटा क्या होता था cot थीटा होता था, cot थीटा क्या है h/4 एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा 4/h। आई होप ये क्लियर है, मैंने इसका जस्ट रेसिप्रोकल किया। नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, अगर मैं ट्राइंगल लेती हूं ट्राइंगल एबीडी, tan थीटा विल बी h
अपॉन 9, दिस h अपॉन दिस कंप्लीट 9, तो यहां से सीधा सीधा tan थीटा आ गया h by 9. नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2. बाय 1 and 2 दोनों ही tan थीटा की वैल्यू है 4 by h equals to h by 9. I'll cross multiply, h square equals to 36. तो यहाँ से h आ जाएगा 6 मीटर. मैं नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. दिस क्वेश्चन इज सो सिंपल. 2 पॉइंट्स हैं, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये दोनों एंगल्स का सम विल बी 90. एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, और दोनों पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है. दैट्स इट. तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू, एंड मैंने उसे इक्वेट किया तो h इज 6 मीटर. एंड दिस इज all about applications of trigonometry, right? And if there is any doubt, do let me know. Thank you for the class.